Good afternoon, everyone. Our today's topic is rabies. Rabies is a viral disease which is caused by bite of the canine animal. Canine animal means which feeds on meat. So rabies is actually occurred by virus which present in the saliva of the canine animals such as jackals, wild animals, dogs, cats, etc. So rabies virus has four type of strain. This is also called lysovirus. Lysovirus 1, lysovirus 2, lysovirus 3 and lysovirus 4. But among which lysovirus 1 is only responsible for rabies. The actual rabies disease is caused by lysovirus 1, which is present in canine animal, saliva of the canine animal and their nervous tissue. How rabies virus works, how rabies virus reached in to the human and how it causes infection or what is the pathology of their infection. At first, when the canine animal bite a person, the virus enters into subcutaneous tissue or muscles of the person at the bite-bitten area, from where the virus propagates deeper to the tissue to reach out the nerve. And once the virus reaches the nerve, it propagates along the nerve and go to the central nervous system. And after reaching the central nervous system, it produces its actual symptom such as convulsion, coma, phobias, and followed by death. Rabies is a dead end infection. Means once a man get infected from the rabies, he will die. Till date, till now, only 3% could survive from the rabies. Only 3%. So it is a very fatal disease. It is caused by virus, lysovirus type 1, which is present in the canine animal saliva and nervous tissue. So this is all about the agent. Now, what are the hosts? Who are the hosts? Hosts are the animals and men, especially men. Men from 1 year to 25 year of people are more prone to get affected or get bitten by the animals, so they are more prone to get infected. Now, what is the environment? It is occur mainly in wild areas or the areas where street dogs are more in quantity. Many country There is many country where there is no dog. They restrain all the dogs, all the street dogs. So in those countries there is no rabies, such as Australia, New Zealand, Austria, and so on. There are many countries where there is no dog, so no rabies. So to prevent rabies, it is one of the most effective formula to prevent rabies to restrain the all dogs. These are all about agent, environment, and host. Now, what is the mode of transmission? Mode of transmission. There are mainly three type of transmission occur. First is wild rabies. Second is domestic rabies, and third is bad bitten rabies. Bad. Wild rabies means wild animal when person comes in contact with the wild animal or wild animal attack to the person. Rabies, if the wild animal infected with rabies, he infects the person. It is called wild rabies. Domestic rabies, when the street dog, domestic dog get infected anyhow and he will bite the animal, the man, it is called domestic rabies. And third is bad means changara, who feed on the blood of the animal or is almost responsible for rabies, or probably this bat is infectious or infected by rabies. So if he bite any animal, any man, he will also get infected from the rabies. What are the mode? These are the source. What are the mode? Mode is simple bite, scratch,
bite by the animal, scratch by the animal, lick. If animal lick any broken skin area where there is ulcer or cut injury or wound, and uh, rabies animal lick the area, so person can get infected. And other is aerosol. In many laboratory where research regarding the rabies of done, so in that area the rabies virus can appear in the environment in an aerosol, and aerosol when we inhale we can get infected from the rabies. So these are the mode of what is mode: licking, scratching, biting, and aerosol. Aerosol. These are the mode. What is the infective material? Infective material mainly is saliva. Saliva of the infected animal, and uh, any secretion from the animal also source of infection. And nervous tissue of the animal is main source of infection. So these are the mode, source, reservoir, all about this. Now, how we can get know, or how can we understand or perceive that this animal or this dog is infected or it has rabies? How? There are some signs which present in the rabid dog or infected animal, especially dog. What is the sign? First sign is unprovoked biting. Unprovoked biting. When you were walking through the street on another side and dog was sitting on other side, you had did nothing to dog, but dog crossed the road, comes to you and bites you. This is called unprovoked biting. मतलब आप कुछ किए भी नहीं और आपको कुत्ता काट लिया। आप रास्ता के इस पार से चल रहे थे, कुत्ता उस पार बैठा है, रास्ता क्रॉस करके आपको काटा है। Unprovoked biting. It is the first sign. क्यों? Because irritability of the dog. Dog में irritability आ जाता है, उसको काटने का एक impulse आता है due to infection of the rabies. दूसरा क्या है? चेंज ऑफ द वॉइस. तो गुर्राने का, बोलने का, भौंकने का जो तरीका होता है वो कुछ चेंज हो जाता है, एकदम अलग ही तरह का, बहुत डेंजरस हो जाता है. थर्ड वन इज ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा. कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द माउथ. थर्ड वन इज रन अमॉक. वो यहाँ वहाँ भागते रहता है, एक जगह नहीं मिलेगा. आज यहाँ मिल रहा है तो कल 1 किलोमीटर दूर, पर 2 किलोमीटर दूर, तो अराउंड 5 to 6 किलोमीटर के अराउंड वो जा सकता है, एक जगह नहीं रहेगा. रन अमॉक उसको बोलते हैं. इधर उधर भागते रहेगा और जहाँ जाएगा वहाँ के कुत्ते से लड़ेगा, वहाँ पे कुत्ता को काटेगा, उसको भी रिलीज होगा. सो एक कुत्ता 5 से 6 किलोमीटर के एरिया के सारे कुत्तों को इन्फेक्टेड कर सकता है. सो ये प्रोविज़न है जिसको रेबीज हुआ जो डॉग को उसको मार देते हैं और उसका गला काट के गाड़ देते हैं ज़मीन पे, या फिर उसको लैब में ले जाते हैं. यही प्रोविज़न है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द रेबीज. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेबीज, रेबीज डॉग इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, कॉजेशन एंड इन्वायरमेंट. नाउ व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम. क्या सिम्टम होता है रेबीज, कैसे समझना है? फर्स्ट साइन तो यही हो गया कि अनप्रोवोक्ड बाइटिंग, कुत्ता काट लिया. तो कुत्ता कभी कुछ जरूरी नहीं है कुत्ता काटा है तो उसको रेबीज है ही, ये भी हो सकता है. सो वी हैव टू फॉलो द डॉग फॉर 10 days. क्यों 10 दिन के लिए, क्यों 15 दिन के लिए, क्यों नहीं 5 दिन के लिए, क्यों नहीं? क्योंकि रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड डॉग में 10 days तक का होता है. मतलब अगर रेबीज डॉग में आज इन्वेट किया है तो 10 दिन के अंदर मैक्सिमम 10 days तक इसका सिम्टम आने लगेगा, या फिर सिम्टम ज़्यादा होकर डॉग मर जाएगा. तो 10 दिन में डॉग अगर आज होता है रेबीज तो 10 दिन में डॉग का काम तमाम हो जाएगा, यानी डॉग विल डाई और डॉग विल गेट सीवियरली इन्फेक्टेड. वी कैन फॉलो द डॉग फॉर द 10 days. If dog dies or dog or any unnatural behavior appears, so we can assume that the dog
was infected from the rabies who had bitten the man. So this is the one way. सेकेंड, तो क्या सिम्टम क्या होगा? जनरल वायरिनिया का सिम्टम होगा फीवर, मैलेरिया, और जहाँ पे काटा है बिटेन एरिया में टिंगलिंग होगा, टिंगलिंग में बिटेन एरिया, स्पैज़म होगा बिटेन एरिया में, क्योंकि वहाँ के नर्व में रेबीज इन्फेक्ट कर रहा है और नर्व को इरिटेशन होगा तो वहाँ पर मसल स्पैज़म करेगा। एंड ये होगा 2 से 3 दिन तक। 3 से 4 दिन के बाद वो रेबीज धीरे धीरे नर्व को पकड़ेगा और नर्वस टिश्यू की तरफ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाना शुरू कर देगा। फिर नया सिम्टम आएगा। उसके बाद क्या है? एयरोफोबिया। एयरोफोबिया में हवा से डर। अगर कोई पंखा चला रहा है जो बहुत तेज हवा आ रहा है, उस हवा से भी उसको इरिटेशन होगा, स्पैज़म होगा, मसल में स्पैज़म होगा, क्योंकि हवा आ रहा है तो नर्व को स्टिमुलेट कर रहा है, वहाँ भी स्पैज़म होगा। तो इस कॉल्ड एयरोफोबिया। उसके बाद धीरे धीरे फोटोफोबिया आएगा। फिर धीरे धीरे उसको डिग्लूडेशन प्रॉब्लम होगा, कुछ पानी नहीं पी पाएगा, घोट नहीं पाएगा, सॉलो नहीं कर पाएगा, एंड धीरे धीरे उसको पानी से भी डर लगने लगेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। रेबीज को दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया, इसको मेन सिम्टम है वाटर से डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, फोटोफोबिया, मैलेस, टिंगलिंग इन द बिटेन एरिया, ऑल दीज आर सिम्टम। और उसके बाद जब सिम्टम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो क्या होगा? कोमा हो सकता है और कन्वर्सन होकर डेथ हो जाता है, क्योंकि रेबीज इज अ डेथ एंड इन्फेक्शन, डेथ होगा ही। आज तक केवल 3 आदमी के बचने का न्यूज़ है, केवल 3 ही आदमी आज तक जिंदा रह चुका है रेबीज़ के बाद। अच्छा, रेबीज़ क्या, अगर किसी आदमी को रेबीज़ है और वो दूसरे आदमी को काट लिया तो उसको रेबीज़ हो जाएगा? हो सकता है। 2 केसेस ऐसा है कि उसको बच्चे को रेबीज़ था और उसने पापा को काट लिया, पापा को रेबीज़ हो गया, इसलिए रेबीज़ में आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेशन के वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज़। व्हाट इज डायग्नोसिस? रेबीज़ को डायग्नोस कैसे करते हैं? सलाइवा, सलाइवा से वायरस को आइसोलेट करेंगे और उसको कल्चर करते हैं। तो द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव डायग्नोसिस। ब्लड में एंटीजन मिल सकता है, एलिजा टेस्ट कर सकते हैं। और कुत्ते में रेबीज है कैसे? उसका भी सलाइवा लेंगे या फिर उसका गला काट के, अगर रेबीज डॉग है उसका गला काट के लैब में भेजेंगे और लैब में उसका टिश्यू में कल्चर होता है, ग्रीन टिश्यू में, इससे वायरस आइसोलेट होता है। व्हाट इज ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट क्या है रेबीज का? तो ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट हमको समझना पड़ेगा रेबीज, अगर कोई जानवर अटैक किया है किसी इंसान को तो वो आदमी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में क्या है कि रेबिड इन्फेक्टेड एनिमल या फिर जानवर या फिर कुत्ता बस लीक किया है, लीक में चाटा है। कहाँ पे लीक किया है? एक ऐसे एरिया को लीक किया है जहाँ का स्किन इंटैक्ट है, मतलब एकदम सही है, कोई अल्सर नहीं है, कोई कट ऊन कुछ नहीं है, बस इंटैक्ट स्किन पे लीक कर दिया है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है, इसमें चांसेज ऑफ ट्रांसमिशन बहुत कम होता है। इसमें क्या करते हैं, रिस्क ना लेते हुए सिंपल उसको वॉश करते हैं साबुन से 10-15 मिनट तक रनिंग वाटर में, और फिर उसको इंजेक्शन दे सकते हैं वैक्सीन का, रेबीज वैक्सीन का, और डॉग को फॉलो करते हैं 10 डेज तक। इसके बाद आता है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में क्या होता है? स्क्रैच, एनिमल स्क्रैच कर दिया, नाखून से स्क्रैच कर दिया, या फिर लीक किया है लेकिन ऐसे एरिया में लीक कर दिया है जहाँ पे ऊन था, स्किन इंटैक्ट नहीं था, कट ऊन था, कटा हुआ जगह था, वहाँ पे लीक कर दिया। तो ये हो गया कैटेगरी 2। इसमें चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन का वायरस है। इसमें पहले तो वैक्सीन देंगे, पहले वॉश करेंगे एरिया को 15 मिनट्स तक, फिर वैक्सीन देंगे और डॉग को फॉलो करेंगे 10 डेज तक। और अगर इन्फेक्शन पेन वगैरह पेन किलर एंटीबायोटिक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड। अच्छा, थर्ड कैटेगरी क्या है? थर्ड कैटेगरी में बाइट, मोर देन वन बाइट, दांत बढ़ा दिया है, काट दिया।
इसमें क्या करते हैं, इसमें वॉश करेंगे 15 मिनट तक, साबुन से अच्छे से वॉश करेंगे, अल्कोहल डालेंगे, ईथर डालेंगे, और उसको अगर ज़्यादा टिश्यू ज़्यादा सेपरेट हो गया, ज़्यादा कट गया तो स्टिच नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, ऐसे ही वॉश करते रहेंगे, अल्कोहल डालकर साफ करते रहेंगे, और फिर उसको इंजेक्शन देंगे रेबीज़ का, रेबीज़ वैक्सीन देंगे, डॉग को फॉलो करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, पेन किलर देंगे, और पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे। तो ये है ट्रीटमेंट। ना व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेबीज़ को। रेबीज़ को प्रिवेंट करने का दो तरीके हैं, एक तो वैक्सीन, दूसरा जिससे रेबीज़ हो रहा है उसको हटा दिया जाए। रेबीज़ किससे हो रहा है, अगर हम अर्बन एरिया में हैं तो स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट कैट, अगर हमको जंगल में आना जाना है तो जंगल जानवर को नहीं हटा सकते हैं, तो स्ट्रीट डॉग्स को हटा देते हैं। बहुत सारे कंट्री में हटा दिया गया है, नो स्ट्रीट डॉग्स आर देयर। अच्छा, सेकेंड क्या है, वैक्सीन। वैक्सीन किसको दे सकते हैं, डॉग को भी दे सकते हैं और एनिमल को भी दे सकते हैं, और मैन को भी दे सकते हैं, तो दोनों को वैक्सीन देते हैं। ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। वैक्सीन रेबीज़ का दो तरह का आता है, एक होता है सेल कल्चर वैक्सीन, मतलब सेल में कल्चर करके वो वैक्सीन बना हुआ है, और दूसरा होता है प्यूरिफाइड डक एम्ब्रॉयड वैक्सीन, मतलब डक का एम्ब्रॉय निकाल के उसमें रेबीज़ का वायरस डाल के वहाँ से वैक्सीन तैयार किया गया। तो ये दो तरह का वैक्सीन होता है। इसको देने का मेथड भी दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रामस्कुलर और एक होता है इंट्राडर्मल। इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल। अच्छा, इसको कब देते हैं, कैसे देते हैं, कितने कितने दिन पे देते हैं, इसका WHO का एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो न्यू रिकमेंडेशन क्या है, न्यू गाइडलाइंस क्या है। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है दो तरह का होता है, इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल। इंट्रामस्कुलर यहाँ डेल्टॉइड में, जो थाई में, इस तरह से डिफरेंट एरिया में देते हैं। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का 5 डोज देते हैं, 5 इंजेक्शन देते हैं। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन का 5 इंजेक्शन देते हैं। पहला देंगे 0 डे में, दूसरा 3rd डे में, तीसरा 7 डे में, 14 दिन में और 28 दिन में। 0, 3, 7, 14 और 28, 5 डोज देते हैं। किसको देते हैं, जिसको जो एक्सपोजर हो चुका है, जिसको रेबीज़ का एनिमल काट चुका है, एक्सपोजर, इसको बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर इंट्रामस्कुलर वैक्सीन। पोस्ट एक्सपोजर इंट्रामस्कुलर वैक्सीन, एक्सपोज होने के बाद 5, 0, 3, 7, 14, 28, 5। इसके बाद है जो इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल जो होता है वो अम्बिकस के चारों तरफ दे सकते हैं, इंट्राडर्मल होता है क्योंकि वहाँ पे इंट्राडर्मल लेयर क्लियर होता है। तो उसका 4 डोज देते हैं, किसको, पोस्ट एक्सपोजर एनिमल, जिसको काट लिया है उसको 4 डोज देते हैं, 4। तब तक 0, 3, 7, 28, 0, 3, 7, 28। इसमें 14 डे वाला डोज नहीं देते, 0, 3, 7, 28, बस 4 डे। अच्छा, अब जो पहले से वैक्सीनेटेड है, जो पहले से रेबीज़ का वैक्सीन ले चुका है, उसको कुत्ता काट लिया तो क्या करेंगे, उसको रेबीज़ नहीं होगी, चांसेस है, लेकिन उसके पास पहले से वैक्सीन है इसलिए चांसेस कम है, तो उसको केवल 2 डोज देकर छोड़ देते हैं, 0 डे में और 3 डे में, 0 and 3, 0 and 3, 2 डोज देकर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या है, जिसको मान लो हम कुत्ता पाल रहे घर में, या फिर कोई ऐसे जगह में आना जाना है, जंगल में पोस्टिंग हो गया है, ऐसे जगह में कहीं पोस्टिंग हो गया जहाँ आने जाने में खतरा है, कोई जानवर काटने का, तो हमको पहले से रेबीज़ का प्रोफाइलेक्सिस चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, ताकि उनको कोई कुत्ता काटे, सियार काटे, कोई जंगली जानवर अटैक कर दे तो उनको रेबीज़ ना हो। इसको बोलते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, इसमें भी 3 डोज देते हैं, 0, 7 and 21 days, 0, 7, 21 days, 0, 7, 21 days, 3 डोज देते हैं। ये हो गया प्रोफाइलेक्सिस, पोस्ट एक्सपोजर, प्री एक्सपोजर इन मैन। अच्छा, अब कुत्ते में क्या करते हैं, कुत्ते को भी इंजेक्शन देना जरूरी है,
उसको भी देते हैं, 2 डोज देते हैं, हर साल देते रहते हैं। 0 6 मंथ, 0 मंथ 6 मंथ, 0 मंथ 6 मंथ के उसको हर साल डोज देते रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रेबीज, रेबीज वैक्सीन, रेबीज इन्फेक्शन, रेबीज का सिम्टम, रेबीज का कैरियर, रेबीज का रिजर्वियर, ऑल अबाउट द रेबीज। और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप। थैंक यू।